امتی کے لیے عمر بھر اشک اپنا بہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ آئیے دیکھیے، جن کا مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہوا کرتی ہیں، اور آج کے اس پروگرام کی صدارت جس شخصیت کے ذمہ ہے وہ شہر نہیں بلکہ ضلع کے ہر سماجی، سیاسی اور معاشی مسئلے پر پینی نظر رکھنے والی شخصیت، تعلیم و تدریس کے اس صدف جامعہ مفتاح العلوم کے جوہر نایاب، زینت مجلس علماء کرام، قوم کے نوجوانوں کے جذبات کے محافظ حضرت مولانا خورشید احمد صاحب، صدر جمعیت علماء ضلع مئو کو میں بڑے ادب کے ساتھ مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں اور صدارتی خطبہ پیش کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز علماء کرام، لائق صد احترام ہمارے سامعین اعظام اور ہمارے اس مقابلے میں شرکت کرنے والے عزیز طلبہ اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے دانشوران قوم و سیاسی حضرات اور قوم و ملت کے ہمارے نوجوانوں، سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کی آمد کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نے جمعیت علماء کی دعوت کے اوپر لبیک کہا اور ہمارے پروگرام کو زینت بخشی۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء ملک کی سب سے موقر اور باعظمت اور بافعال تنظیم ہے، اور جمعیت کے کارہائے نمایاں سب کے سامنے جیسے سورج نکلا ہے، اس طریقے سے جمعیت کے کارہائے نمایاں سب کے سامنے موجود ہے۔ جمعیت علماء نے اس ملک کے اندر جو عظیم خدمات انجام دیے ہیں، اس کی مثال دوسری جماعتیں پیش نہیں کر سکتی۔ جمعیت علماء کے اکابرین نے جس وقت ملک ظلم و تشدد کا شکار تھا، انگریزوں کے استبداد اور ان کے جبر کی وجہ سے کرا رہا تھا، جمعیت علماء نے ملک کی آزادی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا، سب سے بڑا کردار ملک کی آزادی کے اندر کیا، اور ملک کے اندر امن، بھائی چارہ، قومی یکجہتی، آپس میں میل ملاپ، اخوت و بھائی چارگی کی جس تعلیم کو عام کیا ہے، وہ بھی سب کے سامنے اظہر من الشمس ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جمعیت علماء نے علمی کاموں کو بھی زبردست انجام دیا۔ ہمارے قائد، ہم سب کے رہنما حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند، ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اخباروں کے ذریعے ہر سال حضرت
जमीयत के बजट से एक बजट पेश करते हैं उन कौम के होनहारों के नाम, जो कौम के ऊंची से ऊंची तालीम हासिल करने की जो लोग की कोशिश करते हैं, लेकिन माली वसाइल उनके लिए माने होते हैं, रोकने वाले होते हैं। हजरत एक लंबा बजट पेश करके कौम के नाम ये पैगाम देते हैं कि हमारे व तलबा अजीज, हमारी व तालिबात, बल्कि हमारे मुल्क में बसने वाले हमारे बिरादर वतन के भी वह अजीम लड़के जो मुल्क की खिदमत के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास माली वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी तालीम में रखना पड़ती है। आप हर साल कलों के ऐलान करके और उन बच्चों के तक उनकी रहनुमाई करते हैं। ऐसे ही फ्री कोचिंग कराना ऊंची तालीम के लिए, चाहे इंजीनियरिंग की तालीम हो, डॉक्टरी की तालीम हो, या इसी तरीके से और दूसरी तालीमात, जिसके करने के लिए जमीयत उलमा बेशुमार रकम को खर्चा करती है। दूसरी तरफ आप हजरात ने यह भी देखा होगा, अगर मुल्क के अंदर सैलाब आता है, कोई मुसीबत आती है, फसाद होता है, लोगों के साथ जुल्म तशद्दुद होता है, उनकी बाज़ आबादकारी के लिए हजरत ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, उसको सुनहरे कलम से लिखने के काबिल है, और यकीनन तारीख में उसकी एक लंबी फहरिस्त होगी। एक लंबी फहरिस्त होगी मजलूमों की मदद करने की, और जेलों की सलाखों में बंधे हुए मजलूमों की मदद करना, यह तो जमीयत का नस्बुल ऐन बन गया है। इसलिए उन तमाम खूबियों को मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। हमारी मऊ की जमीयत उलमा ने आपस में बैठ कर ये फैसला किया कि हम कुछ इल्मी कारनामे अंजाम दें जो हमारे नौजवानों के लिए हौसला पैदा करे कि हम इल्मी मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत से मुल्क की तंजीमें और जमातें कंपटीशन, जीके कंपटीशन के नाम से कराती, लेकिन हमारी जमात ने, हमारी जमीयत ने यह फैसला किया, अरकान ने यह फैसला किया कि हम जमीयत इस्लामिक जीके कंपटीशन कराएंगे, जिसके अंदर खालिस इस्लामी मालूमात के सवालात होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हुस्न खूबी के साथ हमारे नौनहालों ने अच्छी खासी तादाद के अंदर फार्म को पुर किया, फिर इम्तिहान में शिरकत किया। हमने बड़े एजाज़ के साथ उनको नाश्ता पानी कराया, उनके लिए इम्तिहान को आसान बनाया, और उन्होंने इम्तिहान दिया, और फिर उनके जो रिज़ल्ट हैं अभी आप लोगों के सामने आने वाले। और हमारे शहर के बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा कि मौलाना आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। आज ये जो भी इनामात आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये कौम के सरमाए हैं, हमारे नहीं है। कौम ने हमारे हौसले को बुलंद किया, हमने उन बच्चों के अंदर हौसला अफजाई के लिए इनामात का इंतज़ाम किया, और मज़ीद हमने अपने बड़े जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती अशफाक अहमद साहब दामद बरकातुहुम को आज की इस मजलिस के लिए हमने रौनकी स्टेज बनाया। हज़रत की अभी कीमती बातें भी होंगी, और उनके दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह इनामात उन बच्चों तक तकसीम भी किया जाएगा। बात आगे न बढ़ाकर मैं यहीं से ये बात ख़त्म करूँ कि तमामी हज़रात उस वक्त तक रुके जब तक के तमाम इनामात की तकसीम न हो जाए। दूसरी बात, फिर उसके बाद ऐशा की नमाज होगी, ऐशा की नमाज पढ़ें और फिर जाने की कोशिश करें। इस तरह के मौक़े बहुत कम आते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वहल यस्तविल लज़ीन यालमून वल लज़ीन ला यालमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? ज़ाहिर है कि कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए मेरे नौजवानों, ए मेरे अजीज़ों, ए हमारे तलबा, इल्मी मैदान में आगे बढ़ो। खुदा पाक की कसम, इल्म एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझ नहीं सकती। इल्म एक ऐसी दौलत है जिस पर कभी जवाल नहीं आ सकता। इल्म वो सरमाया है जिससे कभी आप हलाकत की मंजिल में नहीं जा सकते। इसलिए आज की इस कंपटीशन का मकसद यही था कि हमारे नौजवानों के अंदर, हमारे तलबा किराम के अंदर इल्मी जज्बा पैदा हो। इसलिए
जिन बच्चों का नाम अगर पोजीशन में नहीं आया तो अपने आप को कमतर ना महसूस करके आइंदा के लिए तैयारी करो कि इंशाअल्लाह इस तरह के मौके आए तो हम ज़रूर हिस्सा लेंगे और कोशिश पूरी करेंगे कि हम क्यों न 1 नंबर के ऊपर आ जाएं। इसलिए आप हजरात से और तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन, अल्लाह पाक जिसके साथ खैर का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा शर्फ है उन तलबे अज़ीज़ के लिए जिन्होंने शिरकत किया। अल्लाह पाक इस मजलिस को और हमारे तमाम मुआमिनीन की इयानत को और उनके तमाम कलों के अरकान को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।